the huddle. That's the huddle, and of course superstar Venkatesh is also in audience, looking over every proceeding, every ball that's cringing towards the boundary. And Manoj Tiwari and Yadav are going to be opening the batting, and intimidation is going to be the name of the game, and how they make the first few runs in the first 6 overs when the power play is in position is going to make all the difference. So RP Yadav is going to open the batting with Manoj Tiwari. Huge responsibility. They have to cash in on the first 6 overs when only 2 players are allowed outside the circle. Who's going to go after the bowling? Who's going to play the sheet anchor role? That'll be clear. And I think it should not be a predefined role as and more than his style, Atul, and more than his demeanor, it's his swagger that probably persuades you to believe that he's somebody who can confidently attack any ball. You know, as they say, you know, handsome is what handsome does. So, you know, once you've got the confidence in your field of... but stranger things have happened in the world of cricket. Well, I think they've seen what worked for Bhojpuri Dabangs, and the bowling outfit must have discussed that all they need to do is bowl in the right areas. It's not easy. Well, you don't want that. I think just bending the bat a little bit more, the mechanics, slight angle differs in doing that, and the ball is sprayed. Well, and you cannot blame Manoj Tiwari for garnering all that experience since morning, because you know, he showed up towards the last overs of the ongoing match between the Karnataka Bulldozers and the Bengal Tigers, and of course, and he's seen the Telugu Warriors battle it out. That could have been the risk. Well, there's a shot and it's headed towards third man, and it's a boundary. The first welcome boundary of this innings, and it's been executed with a lot of style and with a lot of glamour. The kind of glamour and style that you associate Manoj Tiwari with. He was quite a shortish delivery, but still went from where he was. Didn't rock back or something. So the intent is clear that if it's going to be short one, it's going to be swatted over a point, and if it's pitched up, he's going to go over the top, and that's what it was. So the plan is pretty clear, and the bowler is up against it. Absolutely, Atul. The plan is very, very clear, and the plan is to go at the bowlers from the word go. Well, you know, with the kind of stance he's got, it's pretty clear, if the bowler is clever, that you've got to keep him within the body frame. Let me tell you this, that Manoj Tiwari, with the kind of nonchalance and intrepid behavior that he's known for on the field, you never know that he can change the fortunes of his team. He should have gone for that, Atul. So the intent actually, even from the batting side, is to be just to try and connect. Don't try to just hit it too hard. There you go. This is the cramped area. Slight inner edge. Are they going to go for a referral? No. Big noise coming, and Manoj Tiwari showing the bat, and rightly so. So end of first over is 9 for no loss. I don't know. He's giving it here, right? So I don't know. Like Sachin has done, he has kept a sweeper cover. So he perfectly knows that he's going to bowl way outside the off stump. And that's a tough ask, because, you know, batsmen try and sweep the ball from outside off stump over the cow corner. There's no protection on the leg side for Sachin Joshi. So he's going to bowl outside the off stump and just short of good length. Well, we would reckon that if he comes around the wicket, Atul, the impact that he could create, or probably the length that he could trouble the batsman with, would be a lot more potent, you reckon? That's the money coming in handy for good cause. So this is the kind of delivery, and he's got protection for that. But your point is valid. If a bowler is comfortable, now most bowlers are not comfortable bowling around the stumps, and that is because of the aggressive intent. Because once you bowl over the stumps, then you're taking LBW out of the equation. So if the batsman misses, you won't get him out. But now the way he's bowling, if you go for a slog sweep and you miss it, he'll probably get a wicket.
Well, he's gone for the big one. Where will it land? It lands safely, misses the fielder, and they probably make a couple of runs for it. A single. And let us remind you that this is the second semi-final being played, and whoever wins this contest will head out to play the finals of CCL Edition 6. And Manoj Tiwari is batting along with RP Yadav, and so far they have managed to score 11 runs in 1.4 overs. And Sachin seems a bit perplexed, as he was not thinking. There's another shot, will be intercepted, and then again nudged towards another welcome boundary for the Dabangs. Well, outfield is like greased lightning. So if it's hit that hard and it's about 10 yards away from you, very hard for the boundary riders to get to it. Slightly overpitched, I think, and too much flight in this one. So he has to bowl a bit flatter. That's what I want. I can understand it's hard. There's some moisture out there, very hard to grip the new ball. Oh, that's nicely done. There's nobody there. There's not much pace on it, so 2 comfortable runs. अपनी बॉलिंग से ऑपोजिशन को तहस नहस करने की कोशिश में है मनोज तिवारी ने। बेहतरीन शॉट खेलते हुए इसको सीधा बाउंड्री तक पहुंचाया, और ये चौका है, ये छक्का देखना दिलचस्प रहेगा। अंपायर ने भी शायद ये कंफर्म करने के लिए ऊपर और ये एक 6 निकला। बेहतरीन शॉट मनोज तिवारी के द्वारा। ओ कमाल है ये शॉट। ये गेंद ना तो छक्के वाली थी, और जिस तरह से मारा है पता लगता है कि काफी जान है इन हाथों में। खूबसूरती के नंबर 0, इफेक्टिवनेस के पूरे 100% ऑफ दिस चेज। और फिर से कोशिश करी गैप में डालने की, पर फील्डर ने इंटरसेप्ट किया। तो मुझे लगता है कि मनोज तिवारी को अगर स्पिनर्स गेंदबाजी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा तेलुगु वॉरियर्स के लिए, क्योंकि मीडियम पेसर्स की जो स्पीड है उनको रास आ रही है। उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही बॉल की पिच तक जाने के लिए। और फिर से लूज गेंद, और फिर से 1 बाउंस चौका। तो अगर ऑफ स्टंप के बाहर खिलाएंगे और हाथ खोलने का मौका देंगे मनोज को, तो फिर तो ये चौके खाते रहेंगे। इससे मैंने कहा सीखना होगा गेंदबाज को कि किसी तरह उनके शरीर के बीचों बीच में बॉल रखें। और अतुल, इसी तरह रन बनते रहे तो कोटे के ओवर्स खत्म होने से पहले ही, समाप्ति से पहले ही वो अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और वेंकटेश डगआउट में अब खड़े होकर प्रोसीडिंग्स पर नजर डाल रहे हैं। ये फील्ड सेटिंग की बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि खराब गेंदबाजी के लिए आप फील्ड नहीं सेट कर सकते। 15 फील्डर भी कम रहेंगे। ये बेहतर बॉल, जैसे ही टप्पा खा के बॉल अंदर आएगा तो आपको लेग स्टंप के ऊपर मारना पड़ेगा, और वो शॉट लगाते ही आपके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर आप हाथ खोलते हैं तो आपके लिए फ्री हिट है। ऐसा अंदर जाता हुआ बॉल अतुल आज पूरे दिन में मैंने दूसरी बार देखा है, और जो पहली बार देखा था कर्नाटका बुलडोजर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच में मैच चल रहा था, वो जेंटलमैन इस बॉल पे आउट हो गए थे। क्या हुआ यहाँ पे? थर्ड अंपायर को रेफर किया है। आई थिंक बहुत चालाकी दिखाई है। शायद हील जो है, एड़ी शायद लाइन से ऊपर उठी हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा पैर का लाइन के पीछे होना चाहिए। अगर लाइन पे भी है तो फिर भी आप आउट हैं। तो अब ये एड़ी उठी है कि नहीं, जी अभी साफ हो जाएगा। और चालाकी से अकीरेने ने एक मौका बनाया विकेट लेने का, और गेंद भी बड़ी जबरदस्त थी। बॉल तो नहीं है। और ये बाल बचे आरपी यादव। एड़ी नीचे आ गई तो बच गए, अगर खड़े रहते वहीं तो गए थे।
तो एड़ियां मसलते हुए वापस पवेलियन की ओर लौट रहे थे। मनोज तिवारी के बल्ले से निकले 11 गेंदों में 3 चौके लगा चुके हैं, छक्का। ये बढ़िया गेंद, यहां पे रखेंगे। तो 3 ओवर की समाप्ति पे 28 बिना किसी नुकसान के। तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला हो रहा है जी। ये तो विकेट नहीं आया है। तेलुगु वॉरियर्स को आदत नहीं है प्रेशर में खेलने की। एक तरफा मैचेस जीतते चले जाते हैं। मनोज तिवारी ने थोड़ा सा दबाव डाला है, 20 रन बना चुके हैं अब तक। ये अच्छी सोच। मनोज तिवारी को स्पिनर अगर गेंदबाजी करे तो तेलुगु वॉरियर्स के लिए बेहतर है, और 2-3 डॉट बॉल के बाद वो मजबूर हो जाएंगे बड़ा शॉट खेलने के। तो 6 ओवर तक जब तक 2 खिलाड़ी अंदर हैं, कौन झपकेगा पहले ये साफ हो जाएगा। और अतुल अभी तो एक अच्छी शुरुआत मिली है इन्हें, और ये बेहतरीन शॉट कवर्स की तरफ और बाउंड्री। और अतुल जैसे मैं कह रहा था, बेहतरीन शुरुआत मिली है और इनके कुछ सराहनीय बल्लेबाज अभी क्रम में आने बाकी हैं। जैसे आदित्य ओझा और उदय ऐसे कुछ खिलाड़ियों में से हैं जो अपने ही दम पर किसी भी मैच को जिता सकते हैं। या उदय ने पिछले मैच में चंडीगढ़ में बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। तो आपने सही कहा, मुझे लगता नहीं कि कोई भी टीम जो है 1 या 2 बल्लेबाज पर निर्भर है। आपको T20 में अगर नाम कमाना है, जीतना है आपको लगातार, तो आपके पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो जब मौका आए तब रन बनाए। अगर आप 1 या 2 खिलाड़ियों पे ही ज्यादा निर्भर करेंगे तो फिर मुसीबत में आ जाएंगे। क्योंकि खराब गेंद थी पिछली जिसमें चौका गया, ये बेहतर है। जब बॉडी में क्रैम्प करेंगे तो फिर आपको अक्रॉस द लाइन खेलना पड़ेगा, और नहीं तो आपको स्टेप आउट करके बॉल की पिच से सीधा उड़ा के मारना होगा, जो कि मुझे लगता नहीं कि मनोज तिवारी स्टेप आउट करेंगे। फिर से एक अच्छी गेंद और एक बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स के साथ, और एक विकेट की सख्त दरकार है इस टीम को। और अगले 3 से 4 ओवर में अतुल अगर एक भी विकेट नहीं झटक पाएंगे तो इनकी चिंताओं का सबब दुगना हो सकता है। और अगर आप सीसीएल के सुपर फैन हैं तो आप कॉल करें 5333-599 पर और आप जीत सकते हैं आफ्टर 4 overs 35 for no loss। तो 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 35 रन इकट्ठे कर चुके हैं भोजपुरी दबंग, और 143 रनों की दरकार है 96 गेंदों पर। और जैसे आप देख सकते हैं, इनका जो स्नेल है, जो लाल रंग का स्नेल है, वो हरे वाले से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और काफी तेजी से भी आगे बढ़ रहा है। अपनी नए मैच्योर इनिंग्स को यहां से आगे बढ़ा सकते हैं। पीछे स्वीपर कवर है तो ज्यादा खतरे का सबब नहीं बनेगा, पर स्पिनर दोनों छोर से लेके आना ये समझदारी का काम करा है। सचिन जोशी की सुपुत्री मैच में बिल्कुल जरा इन्वॉल्व है, और उन्हें अंदाजा है कि लाल शर्ट में जो है वो वाली टीम उनकी है। पर लाइट्स के नीचे फील्डिंग करना हमेशा मुश्किल रहता है। फील्ड में थोड़ी तब्दीली की जा रही है, थोड़ा सा ऑफ साइड को पैक करा है, और ऐसा लगता है कि शॉर्ट पिच गेंद नहीं करेंगे अब, क्योंकि स्वीपर कवर को ऊपर बुलाया गया है। और आपसे पूछना चाहेंगे कि हीरो अखिल बिलोंग्स टू विच फिल्म इंडस्ट्री? और अगर आप सीसीएल के सुपर फैन हैं तो हमें ये जवाब तुरंत दें। और हाँ, आप सीसीएल के सुपर फैन हैं तो कॉल करें 5333-599 पर और आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपया। जो मनोबल है वो ऊंचा दिख रहा है, कोई भी विकेट गिरी नहीं है। उनके कप्तान अपने डेप्यूटी के साथ, अपने फर्स्ट ऑफिसर के साथ डटे हुए हैं इन द मिडल ऑफ द क्रीज। अभी तक एवरीथिंग इज गोइंग राइट फॉर देम। ये खतरनाक हो सकता था। हमने देखा किस तरह से पहला विकेट खोया था पिछले मैच में, पिछले सेमीफाइनल में ऐसा ही नीडलेस रन आउट हुआ था। मुकाबला किया जाए 4 ओवर के बाद 27 रन थे तेलुगु वॉरियर्स के, तो 27 रन के हिसाब से देखा जाए तो बेहतर है इस समय पूरी दबंग्स की टीम अगर पॉइंट टू पॉइंट मुकाबला किया जाए। अच्छा ओवर जाता हुआ, सिर्फ 2 रन आए इस समय, क्योंकि 2-3 डिलीवरी से ही T20 में दबाव बनता है। और आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा हैट्रिक्स हो रही है, क्योंकि हमें पता है जो नया बल्लेबाज आता है वो रुकता नहीं है, वो मारता ही है।
और कोशिश करी उठाने की, और फील्डर गेंद रोकते हुए 2 रन लेने में कामयाब। भोजपुरी दबंग 5वें ओवर की समाप्ति 39 पर 0। क्या है, सचिन जोशी एक छोर से गेंदबाजी कर रहे थे, उन्हें बदला गया। नया तीसरा ओवर लेके आए, उन्हें एक छोर से ऐसा लगता है कि 4 ओवर पूरे करने का मौका है, पर बहुत मुश्किल उल्टा भाग के कैच पकड़ना, आसपास भी नहीं पहुंचे, और खासकर लाइट्स के नीचे तो अगर आपको ज्यादा अभ्यास नहीं है तो लगभग असंभव। बट फुल स्ट्रोक जरूर था ये। फिलहाल मैं हूं अतुल वासन कमेंट्री बॉक्स में, और मेरे साथ आए हैं अजय मेहरा। अजय, आप तो सीसीएल के वेटरन हैं, मुझे लगता नहीं आपने 6 साल में कोई भी मैच मिस करा है, तो आपने इस साल भोजपुरी दबंग्स की मुझे इंप्रूवमेंट काफी नजर आई है पिछले साल से। जो बैटिंग है वो किस प्रकार की है, बैटिंग में गहराई नजर आ रही है, जबरदस्त उनके पास तरीका है कैसे पेस करना है, एक आइडिया होना चाहिए। जब आप as they say, winning is a habit, and good teams somehow find the players because they never give up. जी, डिसीजन पेंडिंग है यहाँ पे। अब एक रेफरल लिया है, पैर देखना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही गेंद, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अब देखना होगा पिछला पैर क्या क्रीज के अंदर था या उठा हुआ था, और यहाँ पे सुरक्षित नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित। पैर बिल्कुल गड़ा हुआ है, बेस निकाल दिए हैं। आजकल मुझे लगता है अजय कुछ ज्यादा ही अंपायर्स रेफर करते हैं, ऐसे इतनी डिसीजन तो बिल्कुल। तब ऐसे ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, ये कहाँ रेफरल और क्या, मतलब सीधे अंपायर ने आउट दिया तो वापस ही जाना पड़ता था, फिर मतलब कुछ कह नहीं सकते थे। और गेंदबाजों की भी चांदी हो चुकी, कोई फ्रंट फुट पे आउट देना शुरू कर दिया है अंपायरों ने। पुराने जमाने के गेंदबाजों की डबल विकेट्स होती है अगर फ्रंट फुट पे एलबीडब्ल्यू दिया जाता, और हमारे जमाने में तो डिक्की बट जैसे डांट देते थे फ्रंट फुट पे बैट पे लगने पे कि आगे खेला बल्लेबाज, कैसे आपने अपील भी की। और एक खिलाड़ी थे राजीव नैयर हिमाचल के, जो खेलते ही पूरा आगे जाके पैडों से थे, पर यहाँ पे देखिए बल्ले के साथ उन्हें प्रयोग किया, डीप मिड विकेट पे शानदार शॉट, रन आ रहे हैं दबंग्स के लिए, ये एक बड़ी चीज है। आखिरी गेंद अब पावर प्ले की, इस बार कट किया है और सीधा फील्डर के हाथ में। 6 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त होते हुए 45 मिनट से नुकसान। All right, 45 for no loss in 6 overs। मैं हूं सिद्धार्थ कनान अतुल वासन के साथ, और मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में है भोजपुरी लिविंग लेजेंड रवि किशन। कैसे हो भैया? जिंदगी झंड, दे आर रियली ट्रेसिंग वेरी गुड, एंड कहीं भी गलत शॉट नहीं। इससे चल रहा है कि मानसिक संतुलन हमारे लड़कों का बड़ा ही सही जा रहा है, पहले नहीं था। No, means sometime it's a semi-final, so you tend to get carried away. आप बहक सकते हो, लेकिन यहाँ पे सारे हमारे कैप्टन मनोज से प्रवेश, एवरीबॉडी, लुक एट द ग्राउंड, पागलपन देखो यहाँ पे, तेलुगु हीरो का मैडनेस जो है, तो ये ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि आदत नहीं है तेलुगु वॉरियर्स को ऐसे प्रेशर में खेलने की और हारने की, इसलिए थोड़े परेशान चेहरे हैं कि बड़े दिनों बाद मैंने दबाव में देखा है उन्हें। या बिकॉज ये टीम बहुत ही अच्छी, बहुत और बड़े दिनों से लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा नहीं था कि ये लो एक कम। ये लगा चौका when Ravi Kishan is in the studios. Nothing can go wrong for the Bhojpuri team, लिट्टी चोखवा बनल बाहा बड़ा मजेदार, लिट्टी चोखवा बनल बाहा बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं, बट हियर यू नो व्हाट सिद्धार्थ, आई एम मद्दाला शिवा रेड्डी। मैं और आप अभी चल के आ रहे थे, आपको लिटरली लोग मॉब कर रहे थे, तो मैंने सोचा भोजपुरी सुपरस्टार को इतनी फैन फॉलोइंग तेलुगु में कैसे? आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। रेस गुर्रम मैंने एक फिल्म की थी, मैंने और अल्लू अर्जुन ने। वो फिल्म यहाँ की सबसे बड़ी ऐतिहासिक हिट में मानी जाती है, और वहाँ मेरे उसमें किरदार था मद्दाला शिवा रेड्डी, जो मैंने एक साइकोटिक एंटी हीरो किया था, जो बड़ा ही पॉपुलर हुआ, और उसकी फैन फॉलोइंग आप देख रहे हैं। और इनफैक्ट मैं यहाँ अभी तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ काफी दिनों से। तेलुगु से लेके और भोजपुरी तो चलिए है ही,
घर की बात है, पर दिक्कत नहीं आती लैंग्वेज कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, इमोट तो कर लेते हैं। हाँ जी, बिकॉज रंगमंच से कलाकार की कोई भाषा नहीं होती। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा, मैं डरा हुआ था, लेकिन यहाँ के डायरेक्टर्स एक सुरेंद्र रेड्डी थे, उन्होंने बहुत संभाला है। नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल। अभी 4-5 फिल्में कर रहा हूँ और बहुत अच्छा हुआ। और इसके साथ सम डायलॉग्स क्यों ना हो जाए भाई। और ये शिवर रेड्डी इज सेइंग दिस, हाँ, उलगतला यावलो पुणगैरकित्तु आदलाम वट्टिट्टु यन्ना वत्तु बरादा 4 and drop the catch। मैं थोड़ा समझ गया वो डायलॉग, वो कुछ लड़कियों को छोड़ दो करके कुछ था ना, वो क्या था, समझाइए आप। हाँ, वो इस वक्त तो मैं बताऊं सिद्धार्थ, लेकिन सन्नाटा देख रहे हो जरा सा भी। ये पूरे तेलुगु स्टेडियम में इस वक्त आंध्रा ऑडियंस हमारे एकदम, बट ये गेम है, इसको एक फन की तरह हम लोगों ने सीखे। ये शॉट है और ये 6 है, बहुत ही ऊंचा था यार, बहुत ही ऊंचा था। और ये प्रवेश है, प्रवेश पूरा एक पागल है। बेसिकली प्रवेश का इतिहास ये बताऊं कि फौजी था, 5 साल ही वॉज इन फौज एंड देन ही टर्न्ड एक्टर इन भोजपुरी एज अ हीरो करते हैं। लेकिन ये फौजी है तो उनकी मेंटालिटी बड़ी फौजी वाली है। और ये सियाचिन जैसी जगहों पर भी पोस्टेड थे, तो ये बहुत फोकस है। और मनोज का पास्ट है कि ही वॉज अ प्लेयर, उत्तर प्रदेश के लिए खेलते थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। किस तरह के प्लेयर बताइए ना। ये मनोज बड़ा ही मनोज अच्छा, बहुत अच्छे सिंगर हैं, सांसद हैं, आज MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बहुत अच्छे प्लेयर और स्विंग बड़ा अच्छा डालते हैं, बैट्समैन भी बहुत अच्छे।